Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are fit and healthy and your studies are going well. You know that we have started chapter 2 in maths and this chapter is about addition. I have already introduced you this chapter and started exercises also. We have done 2-digit addition without regrouping. We have done this addition in expanded form as well as vertical addition. In my previous video, I started 3-digit addition with extended form and I explained you vertical addition, 3 digits vertical addition. I have done one question for you to explain that. So in today's video, we'll be continuing with vertical addition, 3 digits vertical addition without regrouping. Children, as I told you that addition is not a new concept for you. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं in your lower grades. आप क्लास 1 में पढ़े हैं, उससे पहले आपने अपर केजी में पढ़ा है, उससे पहले आपने लोअर केजी में पढ़ा है. But with every grade, with every क्लास द डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीजेस. पहले आपने सिंगल डिजिट में किया होगा, फिर 2 डिजिट में किया होगा. नाउ यू आर डूइंग विथ 3 डिजिट एंड presently we'll be doing 3 digit without regrouping. Then we will be doing with regrouping also. Then we'll do some statement sums also. So gradually the difficulty level will increase along with your grades. जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी थोड़ा उसका difficulty level भी बढ़ेगा. So let's start with 3-digit numbers without regrouping and we'll be doing vertical addition. Okay, 3-digit numbers without regrouping. Okay, 3-digit numbers without regrouping. And what we are going to do? Vertical addition. Vertical addition. We have done first one, we have done. Now we'll be starting from the second one. So let me write the questions for you. आपके लिए पहले मैं question लिख देती हूँ. Ones, tens, 100. Children, ये प्लेस ज़रूरी होता है बिगिनर्स के लिए शुरू में जब आप सीख रहे होते. बाद में हम बिना प्लेस के भी कर सकते हैं. Then it is 4, 1, 7. Children, let me write the questions first. ये sums को मैं उतार देती हूँ. 4, 7, 2 plus 4, 1, 7 equal to whatever answer we will get, we will write it here. Then again ones, tens, 100. Numbers are 3, 2, 5, 1, 3, 2 and 3, 2, 5 plus 1, 3, 2 equals to here. Let me write one more. एक और लिख देते हैं. It is ones, tens, 100. 2, 3, 8, 4, 3, 1 and 2, 3, 8 plus 4, 3, 1 equals to the answer that we get. Okay, so I have written 3 sums here. Let us do that. Children, in my previous video I told you that ये थोड़ा सा दिस नंबर इज़ कमिंग इन रिफ्लेक्शन. ये जो नंबर है ये रिफ्लेक्शन पे आ रहा है. इसको थोड़ा मैं या तो नीचे लिख दूँगी या थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ. ठीक है, बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन. ये बोर्ड पे थोड़ा बल्ब का रिफ्लेक्शन आ जाता है और एंड आई विल राइट इट हियर और थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं. ओके,
325 प्लस 132. आई होप दिस इज़ ओके. हाँ, अब रिफ्लेक्शन, बोर्ड का रिफ्लेक्शन इस पर नहीं आ रहा है. चलिए ठीक है. Let's start. I have explained you that whenever we start addition or subtraction, whatever, we start from ones. हम ones की तरफ से ही हमेशा start करेंगे. अगर 2 डिजिट कर रहे हैं तब भी, 3 डिजिट कर रहे हैं तब भी, और उससे ज़्यादा डिजिट्स के होंगे एडिशन तब भी, whether it is 4 digit, 5 digit and so on. We always starts from वंस साइड, वंस की तरफ से ही हम शुरू कर दें, टू फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट. ठीक है, ऐसे ही जाते हैं. फ्रॉम राइट वी स्टार्ट एंड देन मूव टुवर्ड लेफ्ट. वंस, फिर टेंस, फिर 100. कभी भी आप उल्टा नहीं करेंगे. आप 100 टेंस और वंस कभी ऐड नहीं करना. ये इससे कभी भी आप इस साइड से स्टार्ट मत करना. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वंस. ठीक है, चलिए. 7 प्लस 2. नाउ चिल्ड्रन, आपको मैं ये भी बताया था कि अगर 2 नंबर हैं, उसमें जो नंबर ग्रेटर वैल्यू का होगा, जो नंबर ज़्यादा होगा, उसको आपको माइंड में रखना है, और स्मॉलर नंबर को आप फिंगर पे ले सकते हैं, सो दैट योर एडिशन बिकम क्विक. आपका जो एडिशन है वो फास्ट हो सके. अदरवाइज व्हाट यू डू, यू हैव टू डू, आपको सारे नंबर्स फिंगर्स पे लेने पड़ते हैं, फिर एक एक करके आप काउंट करते हो. सो इट इज़ टाइम टेकिंग. आपको फास्ट तरीका बताया है. आप एक जो बड़ा नंबर है उसको माइंड में ले लीजिएगा और छोटे नंबर को आप फिंगर पे ले लीजिएगा. तो हमने 7 और 2 है. 7 इज़ अ ग्रेटर नंबर. 7 जो है वो बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है. 7 को आप माइंड में रख लीजिए. टेक 7 इन माइंड. अब 2 जो छोटा नंबर है उसको हमने फिंगर पे ले लिया. माइंड में कितना है? 7 है. तो 7 के आगे से काउंट करेंगे. 7 तो माइंड में है ही है. अब 7 के नेक्स्ट, 7 के बाद क्या आता है? 8, 9. 8, 9. So we will write here 9. Okay. Next is 7 and 1. Now this is easy. इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. 7 है, उसमें एक और ऐड कर देना है. 7 के बाद एक और नंबर डालना है and you will get 8. Yes, you will get 8. Now here as you can see we have 2 4s. हमारे पास दोनों ही नंबर सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है. तो आप एक नंबर को माइंड में ले लो, एक नंबर को फिंगर पे ले लो. टेक ये वाला 4, कोई भी 4 अपने माइंड में ले लिया और एक 4 को अपने हाथ में ले लिया. ठीक है. नाउ स्टार्ट. जो माइंड में 4 है उसके आगे से गिनना है. माइंड में जो 4 है उसके आगे क्या आएगा? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. ठीक है. माइंड में 4 था ना, 5, 6, 7 and 8. So we will write here 8. Now our answer is 472. ये 472 है. 472 plus 417 gives answer 889. So same thing is written here. 472 plus 417 gives answer 889. बस ऐसे ही करना है. Easy. चलिए नेक्स्ट करें. 5 plus 2. Children, I know you can do very fast counting. कुछ बच्चे हैं जो फटाफट काउंट करते हैं, बट सम चिल्ड्रन टेक्स टाइम. थोड़ा उनको टाइम लगता है. हमें तो सबको साथ लेके चलना है ना. तो ठीक है. तो 5 को क्या करना है? माइंड में ले लेना है. 2 को क्या करना है? फिंगर पे लेना है. क्यों? क्योंकि 5 ग्रेटर है और 2 स्मॉलर है. तो 2 को फिंगर पे ले लिया, 5 को माइंड में ले लिया. अब 5 के आगे से गिनिए. जो माइंड में है उसको, उसके नेक्स्ट. माइंड में 5 है, 5 के बाद 6, 7. सो विल सी 7. हो गया. चलिए 3 plus 2. 3 plus 2 तो सभी कर लेते हैं ना. आप ये छोटी क्लास से सीख रहे हैं. 3 plus 2 is 5. Yes, good. And 3 plus 1 is 4. इसके लिए माइंड में रखने का ज़रूरत नहीं है ना. किसी भी नंबर के साथ अगर 1 ऐड होता है तो आंसर नेक्स्ट नंबर ही आ जाता है. किसी भी नंबर में आप 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा. 9 में 1 ऐड कीजिए 10 आ जाएगा. 8 में 1 प्लस कीजिए 9 आ जाएगा.
12 में 1 प्लस कीजिए 13 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर जब भी आप 1 किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वी गेट आंसर एज द नेक्स्ट नंबर हमको आंसर में मिलता है। लेट्स मूव ऑन टू द सॉरी, यहाँ पे लिखना तो ज़रूरी है ना, 325 प्लस 132 गिव्स आंसर 457। ओके, नेक्स्ट 238 431, 238 एंड 431। 8 प्लस 1, अभी मैंने आपको यही समझाया था कि किसी भी नंबर में अगर 1 ऐड होता है तो हम नेक्स्ट नंबर लिख देते हैं। 8 में 1 ऐड करते ही 8 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 में 1 जैसे ही प्लस करेंगे तो आ जाएगा आंसर 9। ठीक है, जिस भी नंबर में आप 1 ऐड करोगे उस नंबर का नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाएगा। अब प्रैक्टिस करके देखो, 25 है उसमें 1 डाल दो 26 आ जाएगा। 38 है उसमें 1 डाल दो 39 हो जाएगा। 38 के बाद क्या आता है 39। ठीक है, तो 1 ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस 3, 3 और 3 को प्लस करना है। जो लोग क्विकली कर सकते हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जिन्हें थोड़ी सी परेशानी है वो 2 3 हैं, एक 3 को फिंगर पे ले लो और एक 3 को माइंड में ले लो। माइंड में जो 3 है उसके आगे से गिनना है 4 5 6, माइंड में 3 है उसके आगे आया 4 5 और 6, सो वी विल राइट हियर 6। 4 प्लस 2 या 2 प्लस 4, तो 4 इज़ अ बिगर नंबर, माइंड में रखिए। 2 इज़ अ स्मॉलर नंबर, फिंगर पे रखिए। माइंड में 4 है, 4 के आगे से गिनेंगे 5 6 and we will write 6. So answer that we will get 238 plus 431 gives 669. Okay? I hope ये समझ में आ गया है आपको, है ना। अब इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ और हम नेक्स्ट नंबर और नेक्स्ट क्वेश्चंस और लिखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं पहले। 1s 10s 100 4 1 6 प्लस 3 2 2। फोर 1 6 प्लस 3 2 2 gives आंसर दिस। ओके, नेक्स्ट है हमारा 1s 10s 100 5 0 3 1 6 2। ठीक है, एंड इसका हम लिख लेते हैं 503 plus 162 gives answer this. Next है 1s 10s 100 7 2 5 plus 2 5 3 और नीचे लिखेंगे 725 प्लस 253 गिव्स आंसर, जो भी हमारा आंसर आएगा वो। ठीक है, 2 मोर आर देयर, लेट मी राइट दोज ऑल्सो, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। 1s 10s 100 309, आई होप ये हमारे फ्रेम में आ रहा है, यस। देन 490, ओके, और यहाँ पे उसका आंसर लिख देते हैं 309 प्लस 490 गिव्स अस वॉट एवर आंसर वी गेट। ठीक है, एक यहाँ पर भी हमारा आ सकता है 1s 10s, थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं 1s 10s 100 427
and 272. ठीक है, अब देखते हैं कि इसके लिए जगह बना लेंगे, आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, या ऐसा करते हैं इसको बाद में लिखते हैं, एक ही हमारा लास्ट में बच जाएगा, इसको बाद में लिख देंगे डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ऑन द बोर्ड। पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस। 6 + 2। नाउ चिल्ड्रन 6 इज़ अ बिगर नंबर, 2 इज़ अ स्मॉलर नंबर, ठीक है। 6 बिगर नंबर है और 2 स्मॉलर नंबर है, तो 6 को माइंड में रख लीजिए, 2 को फिंगर पे रख लीजिए। अब 6 के आगे से काउंट कीजिए। 6 के बाद क्या आता है? 7 8। 6 को नहीं गिनना है, 6 तो माइंड में है ही है, 6 के नेक्स्ट 7 8। विल राइट हियर 8। 2 + 1, वी नो दैट कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर के साथ 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 3। 4 + 3, 4 इज़ अ बिगर नंबर, कीप 4 इन माइंड एंड 3 ऑन फिंगर। फिंगर पे 3 ले लीजिए, 4 को माइंड में रखिए। अब 4 के आगे से काउंट करेंगे, 4 माइंड में है ना, इसके आगे से 5 6 7, we will write 7 here. So answer is 738. मतलब 416 + 322 gives us 738. By adding these two numbers we got this answer. Okay? Next, 3 + 2. 3 + 2 you know, 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है. We'll write here 5. Okay. 0 + 6. Now this also have explained, जब भी हम किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड करते हैं तो आंसर में हमें वो नंबर ही मिलता है, क्योंकि 0 अकेले है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब वो किसी नंबर के साथ होता है तभी उसकी वैल्यू होती है, अकेले वैल्यू नहीं है 0 की। मतलब मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास 5 पेंसिल्स हैं और कोई आपको कोई भी पेंसिल नहीं दे रहा है तो आपके पास तो आपकी कितनी पेंसिल रहेंगी? 5 तो रहेंगी ना। तो ऐसे ही है, तो यहाँ पर 6 है और ये 0 है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 6 + 0 इज़ 6। 5 + 1, 5 + 1 बताया था ना, 1 ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। 5 है और उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो वी विल गेट 6। सो 503 इज़ एडेड टू 162। जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, आफ्टर एडिंग वी गेट द आंसर 665, 665। ओके, नेक्स्ट 5 and 3, ठीक है। 5 and 3, तो 5 को माइंड में रखिए और 3 को फिंगर पे रख लीजिए। ओके, 5 को माइंड में और 3 को फिंगर पे। 5 के आगे से गिनिए, 6 7 8, 6 7, 5 है ना, 6 7 8। वी विल राइट हियर 8। 5 + 2, 5 को माइंड में रखिए, 2 को फिंगर पे रखिए। 5 के आगे से गिनिए, 6 7, 7 + 2, 7 इज़ बिगर नंबर, 7 को माइंड में रखिए, 2 को फिंगर पे रखिए। 7 के आगे से गिनेंगे, 7 के बाद क्या आता है? 8 9। वी विल राइट हियर 9। सो 725 added to 253 gets the answer 978। हमको आंसर में मिला 978। ओके, now moving on to the next question, this one, 9 + 0। as I told you, अभी जस्ट मैंने बताया था किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड करने से आंसर में हमें वो नंबर ही मिल जाता है। सो 9 + 0 वी विल गेट 9 हियर। हियर ऑल्सो 0 + 9, 9 में 0 ही ऐड कर रहे हैं तो आंसर में हमें 9 ही मिलेगा। 4 + 3, 4 + 3 कितना होता है? यहाँ भी हमारा 4 + 3 था, यहाँ भी हमारा 4 + 3 है, ओनली ऑर्डर इज़ चेंज्ड। इसमें 4 ऊपर है 3 नीचे है, यहाँ पर 3 ऊपर है 4 नीचे है, लेकिन नंबर चेंज नहीं हुआ है, ओनली ऑर्डर इज़ चेंज। ये भी मैंने आपको समझाया था, किसी भी नंबर में अगर नंबर सेम है, भले उसका ऑर्डर चेंज हुआ है, कोई आगे आ गया है और पीछे आ गया है, तो आंसर नहीं चेंज होगा। मतलब अगर आप
7 + 5 में जो आंसर आता है वही आंसर 5 + 7 में भी आएगा। भले यहाँ 7 आगे है 5 पीछे है, यहाँ 5 आगे है और 7 पीछे है, लेकिन नंबर तो सेम है जो हम ऐड कर रहे हैं, तो आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं कि नंबर को आगे पीछे करने से आंसर चेंज नहीं होता है। सो 4 + 3 हमारा यहाँ 7 आया था, तो यहाँ भी 3 + 4 हमारा 7 ही आएगा। ओके, सो आंसर इज़ 308 is added to 490 and it gives answer 799। ठीक है, चलिए तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ बिकॉज वी हैव टू राइट वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस पेज। इस पेज का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। It is ones, tens, 100, 427 plus 272. 427 plus 272 gives answer. Let's find out. Yes, children. Now let's check this. 7 plus 2. Now 7 is a bigger number and I think this we have done. No. 7 is a bigger number. We will keep this in mind. इसको माइंड में रख लेंगे और 2 को फिंगर पे रख लेंगे। 7 के आगे से गिनेंगे क्योंकि 7 माइंड में है। 7 के आगे 8, 9. We will write here 9. Now children, as you can see 7 plus 2 है, यहाँ भी 7 + 2 है, सिर्फ नंबर ऊपर नीचे कर दिया गया है पर नंबर सेम है ना। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब यहाँ भी हम 7 और 2 को ऐड कर रहे हैं और इधर भी हम 7 और 2 को ही ऐड कर रहे हैं, बस ऊपर नीचे नंबर को कर दिया है। सो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। यहाँ 9 आया है तो यहाँ भी हमारा 9 ही आएगा बिकॉज नंबर्स आर सेम। नाउ 4 + 2, 4 को माइंड में रखिए, 2 को फिंगर पे रखिए, 4 के आगे से गिनिए, 4 के आगे 5, 6 हो गया 699। सो 427 is added to 272, it is giving us answer 699। ओके, तो ये हमारा पेज नंबर 43 हमने कंप्लीट कर लिया, पेज नंबर 43। Now children, we will move on to page number 44. Page number 44. इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पर 1s, 10s, 100 नहीं लिखा है बिकॉज वी हैव इनफ ऑफ प्रैक्टिस विथ प्लेसेस। अब बिना 1s, 10s, 100 लिखे भी हमें पता है कि कौन सा 1s है, कौन सा 10s है और कौन सा 100 है। ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं है अब 1s, 10s, 100 लिखने की, वी कैन डायरेक्टली डू। क्वेश्चन इज़ ऐड करना है हमें। ठीक है, क्या ऐड करना है? 1, 2, 2 प्लस 2, 0, 3। नेक्स्ट है 1, 3, 5 प्लस 3, 2, 3। नेक्स्ट है 6, 0, 8 प्लस 9, 1। Then we have 3, 3, 6 plus 2, 1, 6। ये हमारा फर्स्ट रो में दिया हुआ है। ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं। लेट्स डू दिस। नाउ चिल्ड्रन, एज यू कैन सी हियर 2 + 3, 2 + 3 यू ऑल कैन ईजिली ऐड, है ना। 2 + 3 कितना होता है? 5।
2 में 0 ऐड करना है. वी नो दैट वी विल गेट द सेम आंसर, दैट इज़ 2. 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रह जाएगा. 2 + 1, किसी भी नंबर में 1 ऐड हुआ तो नेक्स्ट नंबर, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 3. सो आंसर इज़ 325. नेक्स्ट 5 + 3. 5 इज़ अ बिगर नंबर. 5 को रखिए माइंड में, 3 को रखिए फिंगर पे. माइंड में कितना है? 5. 5 के आगे 6, 7, 8. तो हम क्या लिखेंगे? 8. 3 + 2. 3 + 2 फिंगर पे करने की ज़रूरत नहीं है. यू ऑल नो 3 + 2 इज़ 5. अगेन वी हैव नंबर 1 विच इज़ एडेड टू 3. 3 में ऐड करना है 1 को, तो 3 का नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा विच इज़ 4. 458. नेक्स्ट इज़ 8 + 1. 8 में जब 1 ऐड करेंगे तो 8 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 9. वी विल गेट 9. 9 में 0 ऐड करना है. 9 में 0 ऐड करना है तो क्या मिलेगा आंसर? 9 ही रह जाएगा. और ये वाला 6 यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए 6 को ऐसे ही उतार देंगे. चिल्ड्रन, यहाँ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, 608 है, उसमें 91 प्लस किया है, तो हम 608 को प्लस 91 नहीं लिख सकते. दिस इज़ रॉन्ग. 91 इसी तरफ है. क्यों इस तरफ है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वंस शुड बी एडेड टू वंस एंड टेंस शुड बी एडेड टू टेंस. वंस को वंस के साथ ऐड करते हैं और टेंस को टेंस के साथ ऐड करते हैं. इज़न्ट इट? बताया था ना. तो जब हम लिखते हैं 608 और किया है 91, तो ये हमारा वंस है, ये टेंस है और ये 100 है. ठीक है. यहाँ पर ये वंस है और ये टेंस है, तो वंस को वंस के साथ करना है और टेंस को टेंस के साथ ही करना है. इसीलिए 608 लिखेंगे. और वंस क्या है? यहाँ पे हमारा 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे. 9 हमारा क्या है? टेंस है, तो उसको टेंस के नीचे लिखेंगे. ठीक है. जब आप ऐसे लिखते हो तो ये गलत क्यों हो जाता है? ये क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि ये एक्चुअली में तो 9 क्या है, ये 1 क्या है? वंस है, लेकिन कहाँ लिख रहे हैं हम इसको? टेंस के नीचे लिख रहे हैं, है ना. 9 हमारा क्या है? टेंस है, लेकिन हमने इसको लिखा कहाँ पे है? 100 के नीचे लिखा हुआ है ना. इसीलिए ये गलत है. ठीक है. ये 9 टेंस है जिसको हमने 100 के नीचे लिख दिया है, और ये 1 वंस है जिसको हमने टेंस के नीचे लिख दिया है. इसीलिए ये गलत है. हमें इसी तरह से इसको लिखना है. ठीक है. एज आई टोल्ड यू, मैथ्स में हम जो सॉल्व करते हैं वो राइट टू लेफ्ट जाता है. ओके. चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 6 + 6. नाउ वी हैव 2 6 हियर. 6 + 6 है, नो 6 + 3 है, सॉरी, ऊपर भी 3 ही है. 3 3 3. ओके. नाउ वी हैव 1 3 1 6. 6 को माइंड में रखना है और 3 को फिंगर पे लेना है. माइंड में कितना है? 6 है. उसके आगे से गिनते हैं 7 8 9. 7 8 9. So we will write here 9. 3 + 1. 3 में 1 को प्लस करते ही क्या होगा? 3 का नेक्स्ट नंबर है वो हमें मिल जाएगा. 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 4 है, तो हो गया 4. 3 + 2. 3 + 2 इज़ 5. ये तो आप सबको बहुत आसानी से आता है. 3 + 2 कर सकते हैं आप. दैट इज़ 5 और आंसर है 549. ठीक है. चिल्ड्रन, ये जो हम कर रहे हैं पेज नंबर 44 कर रहे हैं. ठीक है ना. और अभी हमने पेज नंबर 44 के 4 क्वेश्चंस किए हैं. इस पेज पर हमारे टोटल जो क्वेश्चंस हैं, सम्स हैं, वो कितने हैं? 4 8 12 16 25 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. 24 क्वेश्चंस हैं. 4 हमने कर लिए हैं और 20 और हमें करने हैं, बट वो हम अब आने वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में, जैसा मैं बोलती हूँ, सारे क्वेश्चंस करना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है. तो बाकी के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हम अपने
नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज जितना भी हमने किया है आप उसे खुद से कीजिए। आई डोंट थिंक यू नीड टू वॉच, यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ वीडियो। वीडियो में आपको समझा दिया गया, आप समझ लीजिएगा इसको देखकर, बट डोंट कॉपी। आप इस पर कॉपी मत कीजिएगा वीडियो से, ठीक है। इससे देख के आपने समझ लिया एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ विदाउट कॉपिंग फ्रॉम द video. We will meet in the next video with the rest of the sums. Okay, thank you.